السلام علیکم فرینڈس، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ٹھیک کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ضرور افسردہ بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور ملکی حالات تو نہیں میں کہہ سکتی ہوں، یہی کہہ سکتی ہوں ہمارے تعلیمی اداروں کے حالات دیکھ کے آپ لوگ یقیناً پریشان ہوں گے۔ کئی پیرنٹس زیادہ پریشان ہوں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے تعلیم حاصل کروائیں، کیسے ان کا فیوچر بنوائیں۔ میرے پاس نا الفاظ نہیں ہیں ان سب کے لیے بولنے کے لیے کہ کیا میں کہوں۔ بہت دل پریشان ہے، افسردہ ہے بہت زیادہ۔ کیا بتائیں اب کہ ہم کیسے بچوں کا فیوچر بنائیں، کیا تعلیم دلوائیں۔ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری ہے۔ عورت پہلے زمانے میں عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، آج بھی دفنایا جاتا ہے، لیکن طور طریقے الگ ہیں۔ عورت ہر طرح پیستی ہے، ہر طرح آزمائی جاتی ہے۔ مردوں کو یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تم لوگوں کو محافظ بنایا، آپ لوگ ہمارے محافظ ہو، ہمیں تحفظ دیں، ہمیں عزت دیں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ کیوں نہیں آپ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں؟ وہ بچیاں، میں سب کی بات کرتی ہوں، بچیاں سب کی سانجی ہیں۔ اس لفظ کو، اس لائن کو، اس محاورے کو سچا کر کے دکھائیں کہ بچیاں سب کی سانجی ہیں۔ یہ صرف باتوں کی حد تک کہا جا رہا ہے کہ بچیاں سب کی سانجی ہیں، لیکن ہے نہیں، کوئی نہیں سوچتا۔ کیوں بچیاں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں؟ تعلیم میں کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا نا ماحول سخت ہے، ہم لوگ آفس میں بچوں کو نہیں بھیج سکتے، کسی اور انسٹیٹیوٹ میں، کسی اور آفیسز میں، کمپنیز میں، کیونکہ وہاں میل ہوتے ہیں۔ ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ ہم بچیوں کو جاب کے لیے بھیج سکتے ہیں کہ چلیں اپنی بچیاں جاب کریں۔ بچیاں تو ادھر تعلیم حاصل کرنے والی بچیاں سیف نہیں ہیں، وہ کیا کریں گی حاصل تعلیم، یا ہم کیا بچوں کو بھیجیں گے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلمہ ہے نا ہمارا، اس کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے نا۔ افسوس اس ملک کی بنیاد آج ریزہ ریزہ ہو چکی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے پہ کیس آیا، میں نام نہیں لوں گی، وہ بچی چھوٹی تھی، اس کے بعد بھی آیا، آج یہ آ گیا، اور اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ جو ایک خود برانڈ، لیکن 4 سال پہلے بچی کے ساتھ ہوا، آج 17 سال بچی کے ساتھ ہوا، لیکن انصاف بالکل نہیں، کسی کو انصاف نہیں ملا۔ ملزم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، قانون سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں کہ ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، ان کو منظر عام پہ نہیں لا سکتے۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگوں نے کسی ایک نے ظلم کیا ہے، اس نے غلط کیا ہے، اس کو سر عام لا کے پھانسی دے دی جائے، دوبارہ کوئی جرت نہیں کرے گا۔ کوئی چوری کرتا ہے، اس کے سر عام اس کے بازو کاٹ دو، دوبارہ وہ جرت نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ یہ قدم تو اٹھا کے دیکھیں، دوبارہ یہ کام ہی نہیں ہوں گے، لیکن نہیں، کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ سیکیورٹی گارڈ کا مطلب کیا ہے؟ حفاظت کرنا۔ حفاظت کرنے والا ہی اس طرح کرے گا، وہی درندہ بن جائے گا۔ یہ کیا باز رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں، ہم شروع سے کمزور ہے لگتا۔ یہ لا پڑھنا، یہ سب بکس، یہ سب پھاڑ دیں، پھینک دیں، جلا دیں۔ کیوں؟ جنہوں نے اس بچی کو دیکھا بھی نہیں، کبھی اس کے ساتھ بات چیت دیکھا نہیں، تو بات چیت کیا کریں گے؟ ان کے لیے میں کہتی ہوں اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچوں کو، بچیوں کو جن کی خاطر وہ باہر نکلے ہیں، اللہ ان کو ان کا مقصد پورا کرے۔ لیکن دیکھا جائے، ہم سب یہ بات کر رہے تھے کہ نیو جنریشن کے بچے جو ہیں سمجھتے نہیں ہیں بات کو، آج کل کے لڑکے نہیں اچھے ہیں۔ پھر پرانا وہ تو وہ بڑے آدمی تھے نا، بڑا آدمی تھا، پرانا وقت تھا، تو یہ تو نیو جنریشن ہے، کس طرح باہر نکل رہی ہے؟ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں کہتی ہوں بہت اچھا انہوں نے قدم اٹھایا، بہت اچھا اسٹیپ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو کامیاب کرے۔ مجھے امید ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اس بچے کو انصاف مل جائے گا۔ میں تو اسٹوڈنٹس کو یہی کہوں گی کہ ویل ڈن اسٹوڈنٹس، جنہوں نے اس بچی کو دیکھا نہیں، جانا نہیں، پہچانا نہیں، لیکن اس کے لیے، اس کے انصاف کے لیے وہ آگے نکل رہے ہیں۔
स्ट्राइक कर रहे हैं, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, एक जान हो रहे हैं। अगर हम सब एक जान होते जाएंगे ना इस तरह, इंशाल्लाह ताला ज़रूर हमें इंसाफ मिल जाएगा। हमारे दौर में तो, हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की तो चीज़ ही नहीं है ना। मैं तो कहती हूँ लॉ वगैरह ये सारे बंद कर दें, बुक्स ख़त्म कर दें, क्योंकि जो अमीर है उसका इंसाफ है, जो गरीब है वो बेचारा फंस जाएगा। उसके लिए कोई इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है, चीज़ के लफ्ज़ ही नहीं है उसके लिए कि इंसाफ मिलेगा। अब इतनी देर हो गई, मेरा ख्याल 1 वीक तो हो ही गया है कि कैसे निकल रहे हैं सारे लोग, लेकिन कोई अभी तक नहीं, बल्कि उल्टा जुटलाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हर चीज़ सामने है उनके, हर चीज़ सामने जा रही है, फिर भी वो कह रहे हैं हुआ ही नहीं। बेचारी तालीम गाह में महफूज है, ठीक है, ना बच्चे ससुराल में, ना कब्र में, कहाँ महफूज है। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? आज वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे बाहर निकल रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, और हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। अफसोस है, बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। ज़ैनब केस, कभी सानिया ज़ोहरा केस, कभी आयशा जहां ज़ेब केस, कभी रेप केस, कभी 2 साल की बच्ची की ज़्यादती। अरे यार क्या हो गया? मर्द तो मुहाफ़िज़ है हमारे, क्या हो गया? बच्ची कहीं भी महफूज नहीं है, ससुराल में बच्ची महफूज नहीं है, औरत का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हो गया है? अपने रब से औरत क्या, अपने रब के सामने हम लोग मांगेंगे, क्या करेंगे? वो एक बात ही ना, हाथ लगाएगी तो डर जाएगी, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि ये पॉइंट थी, एक फ़िश के लिए थी, मछली के लिए पॉइंट थी, और ये चीज़ अब एक औरत के लिए चली गई है, एक औरत पे आके बैठ गई है। गोश्त को ढाँप कर भी तो खाया, मगर कुत्ते फिर भी खाने को आए। तो मसला क्या है? गोश्त नहीं, भूख है, आदत है, सोसाइटी है। इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर देंगे ना, किसी एक ने ये गलत काम किया है ना, उसको सरेआम फांसी दे दी जाए, दूसरे ने किया तब भी दी जाए, 2-4 दफ़ा ये काम करें, हमारे मुल्क में ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हर चीज़ बिल्कुल अपने आप पे आ जाएगी। अगर औरत को एक दिन के लिए मर्द की आँखें लगा दे ना, तो अगले दिन 7 कपड़ों में वो अपने आप को बाहर निकलेगा कि क्या बना, क्या किया हम लोगों ने औरतों के साथ। पर नहीं, खत्म। बंद औरत के जनाजे को भी ना औरत के कंधे की ज़रूरत है। क्यों? उसकी जहालत के दौर में मर्द का भरोसा उठता जा रहा है। अब तो ये लाशों को भी नहीं छोड़ते, इसलिए उन्हें पता ही ना चले कि कहाँ किस कब्र में औरत को दफनाया गया। अफसोस से ये बातें कहनी पड़ती हैं। रोज़ ऐसे वाक़यात हम दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा सामने आते हैं। औरत को हम घर में हया का दर्स देते हैं, हयात की तालीम देते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अगर हम मर्द को भी देना शुरू कर देना, मुझे उम्मीद है कि ये सब वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरह ये न्यू जनरेशन निकल रही, मैं तो ये बात ही नहीं भूल सकती कि न्यू जनरेशन आगे निकल रही है। वेरी गुड, अल्लाह उनको अपने इज़्ज़ो मान में रखे। बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दीजिए और कहें कि घर में बेटियां और शहर में जानवर हैं। यही कुछ ही होना है। जहाँ पे बेटी को बंदूक चलाना सिखाएं, रोटी सिखाना, रोटी तो सीखी जाएगी खुद ही, बंदूक सिखाना चलाना सिखाएं, ताकि जिधर कोई ऐसा देखे तो गोली मार दे। खुद ही देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। उस माँ पे क्या बीती होगी, कितने उसके सपने होंगे, क्या कुछ उसने सोचा होगा, क्या कुछ उसने पता नहीं बेच के उसकी फ़ीस अदा की होगी, और आगे के लिए उसने क्या कुछ अपने आप को ख़त्म किया होगा, ख्वाहिशात को ख़त्म करके उसकी फ़ीस जमा की होगी आगे वक्त के लिए, उसको फ्यूचर अच्छा देना होगा। पता नहीं उसके घरेलू हालात कैसे हैं। अब हम बार बार ये कहते हैं, बाज़ औक़ात तो बेटियां बेटा बनते हैं माँ बाप के, वो पढ़ती हैं, वो पढ़ के अपने पाँव पे खड़ी होते हैं, अपने बाप को, अपने बहन भाइयों को, अपनी माँ को पालते हैं। वो लोग औरतें सारे काम करती हैं। औरत रोटी अगर बनाना जानती है ना, वो कमाना भी जानती है। औरत कमज़ोर नहीं है, औरत गलत नहीं है हर जगह। खुदा के लिए उसकी कदर करें, उसकी इज़्ज़त करें, उसको तहफ़्फ़ुज़ दें, उसके साथ खड़े हों, उसके साथ शाना बशाना खड़े हों, उसको गलत मत कहें। उसको अगर देखें घर में पता नहीं 100 मसले मसाइल हैं, औरत बाहर शौक़ से नहीं निकलती, किसी वजह से निकलती है। किसी दुआ है अल्लाह हम सबको हिदायत दे, हसरात मुस्तकीम पे चलाए। हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की, सबको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, तहफ़्फ़ुज़ दे। चीज़ सामने उनके, हर चीज़ सामने जा रही है, फिर भी वो कह रहे हैं हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। इतना भी क्या किसी ने झूठ बोलना। हम लोग कहते होते थे न्यू जनरेशन किसी काम की नहीं है, उसको एहसास नहीं है, उसके अंदर कोई है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे आके न्यू जनरेशन ने दिल जीत। आप लोग इंसानों से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने रब से झूठ नहीं बोल सकते हैं। रब के आगे तो सब बराबर है ना।
रब को किस तरह झुठलाओगे, रब के सामने क्या करोगे, किस तरह सामने जाओगे? कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि कैसे अपने रब के सामने जाएंगे हम लोग, कि हम लोग किसी को इंसाफ नहीं दे सकते हैं, हम लोग सच्चाई का साथ देते हैं, वो मर जाता है बंदा, उसको जलील ख्वार कर देते हैं, इतनी तकलीफ। वो पहले उस बच्ची के लिए वो गए हैं, बच्ची फीमेल टीचर के पास गई है, उसने इतनी वाहियाती बातें की कि मैं इस तरह बयान नहीं कर सकती हूँ कि उसने कितना गलत अल्फाज में इस्तेमाल किया है, कितनी गलत बातें उस बच्ची को की हैं। वो अनमेरिड बच्चियाँ, मासूम बच्चियाँ, और साथ खड़ी हैं, उस बच्ची को हॉस्पिटल तक लेके जा रहे हैं। और मैं इंतहाई दिल से खुश होती हूँ कि अल्लाह ताला बच्चों के सबके नसीब अच्छे करे। किस तरह बच्चियाँ, हालांकि उनको नहीं पता इन सब चीज़ों का, लेकिन फिर भी वो बेचारियाँ आगे बढ़ी हैं, उसको हॉस्पिटल लेके गई हैं। और वो फीमेल जिसको सब कुछ पता था, उसने इतनी गंदी वाहियाती बातें की। फिर वो पुलिस वाला कह रहा है कि क्लास में चले जाओ या घरों में चले जाओ, नहीं तो एक और वाक़या न हो जाए। वेल डन, आप लोग अपनी वर्दी क्यों नहीं उतार देते? ये ज़्यादा अच्छी बात नहीं है? आपके होते हुए ये सब हो रहा है, आपकी निगरानी में ये सब हो रहा है। इस वर्दी का मतलब क्या है? कभी आप लोगों ने ये पता? वर्दी पहनना आप लोगों के लिए बड़ा इजी था, उसको निभाना आप लोगों को नहीं पता। वैसे आप लोगों को बड़ी बातें आती हैं सबको कि माँ बनना कोई आसान काम नहीं है, फ़राइज़ सर अंजाम देने, बीवी के फ़राइज़ होते हैं, बहन के फ़राइज़ होते हैं, भाइयों के फ़राइज़ होते हैं। ये फ़राइज़ नहीं याद आप लोगों को? उनकी बेटियों ने नहीं जाना? क्या उनकी बहन बेटियां नहीं बाहर पढ़ती हैं? क्या उनका यही शोभा है अपनी बहन बेटियों को आगे करना? फिर हम तो यही जवाब देंगे ना कि उनका शोभा है, उनका ये काम है कि अपनी बहन बेटियां आगे करते जाना। उनको किसी का साथ ही नहीं है। इतना कि वर्गल अल्फाज यूज़ किए। वो जो टीचर है, जो उनकी मिस हैं, वो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रही है, उससे उसकी डिग्रियां, उसकी किताबें छीन लो। किताबों में यही पढ़ा है? क्या पढ़ा है? ऐसी उसकी डिग्रियों पे, ऐसी किताबों पे उठा के उसकी किताबें डिग्रियां फाड़ो, फेंको उसको बाहर, उसको रखो इस काम में, उसको पता चले। शर्म हया नहीं आई उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं बच्चियों के सामने। किसी औरत पे, औरत होने पे दब्बा उसने अपना किया। औरत, और प्रिंसिपल औरत होके उसको एहसास नहीं है, उसको एहसास नहीं है कि क्या उस बच्ची पे जुल्म हुआ है या क्या बात हुई है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, उसको ट्रीटमेंट करने के लिए उल्टे अल्फाज बोल रही है प्रिंसिपल भी और उसकी मिस भी। ऐसी औरतों पे, औरत की हुकूमत है हमारे, औरत ही महफूज नहीं है। वेरी गुड, वेल डन, कितनी अच्छी बात है। हुकूमत पे भी मैं तो बोलूँगी ना, क्या हम बच्चियों को फ्यूचर दे रहे हैं? ये चीज़ें कभी वो भी वक्त था कि बच्चियां रुखसत होते हुए बच्चियों को बता के भेजा जाता था। आज छोटे छोटे बच्चों को इन बातों का पता है। ये हम इस्लामी मुल्क है हमारा? क्या है हमारा इस्लामी मुल्क? कम अज़ कम कोई तो थोड़ा सा शर्म हया कर लें आप लोग, कोई तो ख्याल कर लें आप लोग, कोई तो बात छुपी रहने दें। आजकल छोटे छोटे बच्चों को इन सब बातों का पता है। क्यों नहीं आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे सबको? क्यों नहीं आप लोग तहफ़्फ़ुज़ दे रहे बच्चियों को? बच्चियों का फ्यूचर है। पहली दरसगा माँ की गोद, उसके बाद वो बच्ची तालीम के लिए जाएगी। जब हम एक बच्ची पढ़ी लिखी होगी, पूरा ख़ानदान पढ़ा लिखा होगा, फिर ही कोई आगे कोई सर्कल चलेगा। क्या दे रहे हैं हम लोग बच्चों को? एक तालीम है, वो भी ना हम दे सके। किस तरह माँ बाप अपना पता नहीं कौन कौन सी ख्वाहिशात को ख़त्म करते हैं। पता नहीं 2 टाइम की रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है। 2 टाइम रोटी मिलती है, 1 टाइम रोटी मिलती है, पता नहीं वो भी नहीं मिलती है। वो पैसे बचा बचा के अपने बच्चों की तालीम के लिए करते हैं। तालीम में आगे ये हाल कर देते हैं वो माँ बाप। फिर उसके बाद अपनी बच्चियों के जहेज़ बनाते हैं। फिर उसके बाद आगे बच्ची महफूज नहीं होती। बच्ची कहाँ महफूज है? ना बच्ची बेचारी तालीम गाह में महफूज है, ठीक है, ना बच्ची ससुराल में, ना कब्र में, कहाँ महफूज है? क्या हो रहा है ये हमारे मुल्क में? आज वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, नाबालिग बच्चे बाहर निकल रहे हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए, और हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है। अफसोस है, बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे। ज़ैनब केस, कभी सानिया ज़ोहरा केस, कभी आयशा जहां ज़ेब केस, कभी रेप केस, कभी 2 साल की बच्ची की ज़्यादती। अरे यार क्या हो गया? हमारे तो मुहाफ़िज़ है हमारे, क्या हो गया? बच्ची कहीं भी महफूज नहीं है, ससुराल में बच्ची महफूज नहीं है, औरत का कोई ठिकाना नहीं है। क्या हो गया है? अपने रब से औरत क्या, अपने रब के सामने हम लोग मांगेंगे? क्या करेंगे? वो एक बात ही ना, हाथ लगाएगी तो डर जाएगी, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। कभी नहीं सोचा था कि ये पॉइंट थी, एक फ़िश के लिए थी, मछली के लिए पॉइंट थी, और ये चीज़ अब एक औरत के लिए चली गई है, एक औरत पे आके बैठ गई है। गोश्त को ढाँप कर भी दिखाया, मगर कुत्ते फिर भी खाने को आए। तो मसला
کیا ہے؟ گوشت نہیں، بھوک ہے، عادت ہے، سوسائٹی ہے. اس چیز کو اگر ہم ختم کر دیں گے نا، کسی ایک نے یہ غلط کام کیا ہے نا، اس کو سرعام پھانسی دے دی جائے، دوسرے نے کیا تب بھی دی جائے، 2-4 دفعہ یہ کام کریں، ہمارے ملک میں یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہر چیز بالکل اپنے آپ پہ آ جائے گی.